everyone, I am Nisha Jindal. Welcome to my channel. So let's start our video. Today we are going to do the important questions on related to the chemical reactions and equations. Okay? Before going to this, I will tell you कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है एक नया प्लेटफॉर्म आई मीन दैट नई चीज़ आई है उसमें इंट्रोड्यूस हुई है उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी. So here we are going to do the chemical reactions and equations chapter of class 10th. Here we are going to just start only important questions. Let's start it. So let's do हमारा यहाँ पे first question बनता है what are chemical reactions? So I have written here what are chemical reactions. This is your first question. And let's do here answer. You can also write as example in your answer, okay? You can see what are chemical reactions. Let's start. You can write down the answer. The reactions in which the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed is known as the chemical reaction or are known as the chemical reactions. You can write it down. Do fast. I'm not writing the answers, I'm just speaking it out, so you can write it out on your own. I'm just writing the questions related to that, okay? I'm not writing answers. So our question number 2 is, example आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. You can write the answer. You can write the second question, what are chemical equations? So I have written the question. So you can write it down. What are chemical equations? You will write of your own this answer. You will write of your own. What are chemical equations? Because this is very easy. So you have to write of your own. Okay. Next question में ये है कि आपको वो कोई भी reaction बता सकते हैं जैसे कि milk is left at room temperature during summers. So you have to tell that is it a physical change or a chemical change? What you will write, you will tell me in the comment section. Okay, I will tell you answer in my next video. Next question is show that activity that chemical reaction occur. ऐसी एक्टिविटी शो करो जो कि शो करती है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो इसमें आप आंसर लिखोगे योर एक्टिविटी नंबर 1.1 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. बाय द वे केमिकल रिएक्शन के लिए तो आप कोई भी एक्टिविटी शो कर सकते हो बिकॉज दीज ऑल आर द शो द केमिकल चेंज अकर्स बिकॉज all shows it, but mainly you will write the magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. You will write this one. Next question is do the balancing of the chemical equations. जो मैंने आपको equations लिखवाई थी उन सबका balancing, that is the important. What are reactants and what are products? These are the main questions. Reactants, products क्या होते हैं? And you can also show with the example because this is important. What are reactants and what are products? You can show what are reactants and what are products with the example. Okay, example is very important. Like you can write magnesium, है ना? आपने मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, मतलब O2 लिख लो इसको, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया. अब ये क्या हुए आप ऐसे शो करोगे दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स. तो मैं आपका इसको आंसर बताती हूँ. द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दीज आर द रिएक्टेंट्स. ओके, दीज आर द रिएक्टेंट्स जो अभी गए हैं केमिकल रिएक्शन में, अंडरगोज हुए हैं. एंड सिमिलरली आप प्रोडक्ट साइड का लिख सकते हो आंसर. नाउ ये तो आपको पता ही होगा बेसिक रूल्स, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ हम कोई भी हम यहाँ पे रिएक्टेंट लिख सकते हैं, उसके साथ हम प्लस साइन करके उसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, मतलब केमिकल ऐड करते हैं, तब जाके वह हमारा वो प्रोडक्ट बन के आता है और हम उसको एरो भी शो करते हैं. कंटिन्यूइंग दिस, तो यहाँ हम कर रहे थे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड और यहाँ मैं बता रही थी कि एरो से हम शो करते हैं. नेक्स्ट इज आपको इन बिटवीन क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट वी आर डूइंग with continuing with
आपको इन बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो आपकी डेफिनेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की है वही आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में लिखोगे। ओके, प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्ट्स का द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। लाइक आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेनली रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ही आएंगे, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। नेक्स्ट हमारा राइटिंग केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंसिंग करनी, या फिर आपको बता सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड छोड़ दी, प्रोडक्ट साइड लिखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, तो स्टेप्स का वो नहीं पूछते हैं, मेनली वो बैलेंसिंग ही करवाते हैं आपसे। सो हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, बाय यूजिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ, ठीक है, जैसे गैशियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, जो आपके सिंबल्स थे वो आप उनको यूज़ करके इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। दिस इज़ योर क्वेश्चन, आई कैन राइट इट डाउन, you can write it down. Let me write on the board. You can write it down the okay. So our next question is, तो एक आपको फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड इक्वेशन आ सकती है। एज यू नो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आई विल राइट डाउन 6CO2 that is aqueous gives us 12 H2O that is liquid gives us sunlight, chlorophyll लिख सकते हो, glucose C6H12O6, just a wait, O6, and this is in the aqueous form, plus 6H2O that is liquid. You can write it. Is it visible to everyone? This is your equation of photosynthesis, but that is very much important. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यू कैन राइट व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स एंड शो दैट एक्टिविटी टू दिस, है ना। ऐसे करके आप व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट आर ऐसे आप करके सब कुछ शो कर सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डेंसिटी क्या है, कोरोजन क्या है, विद एग्जांपल्स, सब कुछ विद एग्जांपल शो करना है आपको। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल की आप एग्जांपल इक्वेशन लिख के दिखाओ, है ना। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द स्लिक्ड लाइम के बारे में भी वो बात कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन के रिलेटेड भी वो पूछ सकते हैं। दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। नाउ वी राइट द रेस्पिरेशन रिएक्शन। यू कैन राइट इट डाउन, C6H12O6 that is a glucose. I can write it here. This is glucose. This is photosynthesis reaction. The first one is respiration reaction. वो आपसे कोई भी एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिलेटेड कोई एक्टिविटी शो करके बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड करके बताओ, उसके रिलेटेड बताओ, या फिर आपको वो कलर बताएंगे कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है वगैरह, ये किसका कलर होता है, तो उसको मिक्स करने से जब ये बनता है तो ये क्या है, कंपाउंड ए क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि कलर्स मैंने आपको सबके बताए हुए हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड लर्न इट केयरफुली with my previous videos. और आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के रिलेटेड पूछ सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के रिलेटेड एक्टिविटी शो करने के लिए पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, रिडक्शन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और कौन कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं ऑक्सीडेशन के रिलेटेड, तो आप लिखोगे डेंसिटी कोरोजन वाला, है ना। सो दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स. This is the main question. What is redox reaction? This is also very important. Okay. So we have done the complete chapter related to this. Chapter number 1, chemical reactions and equations. Before this,
अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, एंड आई कैन सॉल्व योर एनी डाउट एट एनी टाइम. Just contact me, okay, in comment box session. So before this, I just want to tell you that please share this video to your friends so that your friends get a chance, and please like, share and subscribe to my channel. Okay, tata, bye bye. Okay, इसको अच्छे से लर्न करना मत भूलना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना. उनको कहना जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ सको. Okay, bye bye.